Assalamu alaikum dear student, welcome to our math class 7, unit number 1, approximation, page number 68. Topic, rounding and truncation errors. Definition of rounding error. Rounding error is the difference between a rounded off numerical value and the actual value. Definition of truncation errors. Truncation errors that result from using an approximation in place of an exact mathematical procedure. Exercise 1b. First of all, we have a basic level. Question number 1 is state the number of significant figures in each of the following. We have a part B, 0.028030. We have a solution. The number 0.02806030 has 5 significant figures. Here we apply our fifth rule. If we no need to this 0, so we neglect this 0, okay, and this 0 as well due to this point. So we count our real number first, that 1 2 3 4 5. So that's why we have a 5 significant figures. Now we have a part C, that is 2900 to the nearest 10, okay. Solution, 2900 which is corrected to the nearest 10 has significant figure. Here we also apply the rule fifth. We neglect our this 0, so we have a 3 significant figures. Now question number 2, round off each of the following into the number of significant figures as given in brackets, okay, like that. We have a part A, 7 to 8, 2 significant figures. Solution is, okay, here we have a solution. Our question is 7 to 8. Answer is 730, okay. If we see here, okay, we have a, हमारे पास यहाँ पर 8 है, it mean greater than 5. If we carry 1 here, okay, यहाँ पर देंगे तो our 2 converted into the 3 and our this 8 converted into the 0, okay. So our answer is 730. Now we have a F part, 8.076, 3 significant figure. S means significant, F means figures, okay. Solution is again 8.076. Answer is here. अब आप यहाँ पर देखें, we have a point, okay. After point usually we need a 2 numbers, okay, like that. So here again 6 is greater than 5. If we carry with 7, then we get 8, and our this 6 we neglected here, okay, in decimal numbers. Answer is 8.08. Now we have a next level, intermediate level. Question number 3, the number 143200 is correct to x significant figures. Write down the possible values of x, okay. Solution, possible values of x is 4, 5 और 6. अब यहाँ पर क्या है, अगेन अगर हम अपने रूल्स को वापस देखें तो if we need this 0, then we say if we need this 0, this one, okay. So we say that we have a 5 significant figures like that, and if we need this 0, then we can say that we have a 6 significant 0. If we no need to this 0, okay, so we can say that we have a 4 significant figures. So it is depend on our question or our values. Now we have a question number 4, that is evaluate each of the following and correct your answer to the number of significant figure as given in bracket. Solution is G, 3.91 power is 3 minus 2.1 divided by 6.41. We have a 2 significant figures, okay. Here solution, ये जो पावर है 3, इट मीन कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है हमारी ये वाली बेस वैल्यू, ओके. इट्स कॉल्ड अ बेस एंड दैट इज आवर पावर, ओके. इट मीन कि हमारी जो बेस है वो क्या है, 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, लाइक दैट, ओके. इफ वी मल्टीप्लाई आवर दिस वैल्यू देन वी गेट 59.776471, ओके.
हेयर यहाँ लिख लिया। अब हमारी माइनस एज इट इज रहा 2.1 एज इट इज डिवाइडेड बाय 6.48. इफ वी सॉल्व आवर दिस वैल्यू, ओके, देन वी गेट 8.998. ओके, 8.998. आंसर इज 9.0. हाउ? अगर आप लोग देखें यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर यहाँ पर हमारे पास 9 क्या है आफ्टर पॉइंट, ओके, वी हैव व्हाट 9, सो इट इज ग्रेटर देन 5. इफ वी, अगर हम कैरी दे रहे हैं अपने 8 को, तो हमारे पास वो 9 हो जाएगा और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. सो we need only true significant figure, so that's why our answer is 9.0, and our this value here we neglected. Okay, now we have a question number 6. The area of a square is 264 centimeter square. Find, we have a first part, the length of this square. Okay, solution is length of square. Our length of square is what, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सी मीन सेंटी, एम मीन मीटर. ओके, वी हैव अ फार्मूला. हमने क्या करना है, सिर्फ जो हमारी वैल्यू है उसको हम लोगों ने अंडर रूट दे देना है. ठीक है, जब आप लोग कैलकुलेटर में अंडर रूट लिखकर 267 लिखेंगे और जब आप लोग इज इक्वल का साइन दबाएंगे, देन वी गेट 16.24807681. ओके, सो आवर आंसर इज 16.2 सेंटीमीटर टू 3 significant figures. Okay, now here अब हमने क्या करना है, we no need to this long value. Okay, only हमने क्या करना है, कोशिश करनी है कि पॉइंट के बाद 2 या 3 से ज़्यादा वैल्यूज ना आए. बट यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 3 significant figures लेने हैं, so that's why we take a 16.2 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर देखें स्क्वायर था और यहाँ पर क्या है, सिर्फ सेंटीमीटर है. जब हम लोग यहाँ पर अपना अंडर रूट देंगे तो इट मीन अंडर रूट हमारे पास इस वैल्यू पे भी आएगा, मतलब इस कंप्लीट वैल्यू पे आएगा. तो इसका आंसर हमने ये निकाल लिया. बट यहाँ पर ये जो है, ठीक है ना, सेंटीमीटर, ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा. सो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, सेंटीमीटर बच जाएगा. नाउ हेयर क्वेश्चन नंबर 7. द सर्कमफ्रांसेस ऑफ द सर्कल इज 136 मीटर. ओके, फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 द रेडियस ऑफ द सर्कल. सॉल्यूशन, we have a formula that is c divided by 2 pi. Okay, this sign is called a what, pi. Okay, this is a Greek letter, or here is equal. Now we have a c mean this value, because here in question we have, they given us that 136 meter like that divided by 2 and we have a pi value. Okay, हमारे पास pi की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 3.14. ये हमारे पास इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू है. नाउ वी हैव अ नोट, वैल्यू ऑफ पाई. ओके, पाई ये साइन है पाई का, इज 22 डिवाइडेड बाय 7. एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास ये होती है. जब हम इसको डिवाइड करते हैं देन वी गेट व्हाट, 3.14, जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है. ठीक है, हमने यहाँ पर डिवीजन में क्यों नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज है, हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी यूज दिस वैल्यू. ओके, हम अब हमारे पास देखिए ये वैल्यू एज इट इज, इफ वी मल्टीप्लाई 2 विद दिस 1, so we get a 6.28. Okay, if we divide our these two values then we get a 21.65050996 meter. Okay, here if we, here we have a answer that is 21.6 meter. Here we also take a only 3 significant figure. Okay, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 6 को लेंगे, बाकी सब वैल्यूज को निग्लेक्ट कर देंगे. ओके, नाउ दिस इज योर सर्कल. ठीक है, दिस इज योर सर्कल. अब डायामीटर क्या होता है, जो हमारे पास हाफ होता है सर्कल का, और रेडियस हमारे पास क्या होता है, जो डायामीटर का हाफ होता है. ठीक है, हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल. इट मीन डायामीटर का जो हाफ है वो हमने क्या करना है, मालूम करना है. ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 9 and level is advanced level. The number of people at the concert is stated as 21,200. Correct to 3 significant figures. What is the largest and the smallest possible numbers of people at the concert. ठीक है, solution is largest possible number of people at the concert is 21,249. Smallest
possible numbers of people at the constant is 21,150। यहाँ पर सिंपल उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि 3 सिग्निफिकेंट, ठीक है ना, फिगर्स का हम लोगों ने बताना है, और यहाँ पर ये बताना है कि हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, लोगों की। सो वी हैव दीज 2 वैल्यूज। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंड पार्ट, यूज द कैलकुलेटर टू एवल्यूट। ओके, अब आप लोगों ने यहाँ पर यूज द कैलकुलेटर करना है। अब यहाँ पर क्या है, 387,654,321 प्लस 0.000007 माइनस 387,654,321। सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू मैथ रूल, ठीक है, हमने सबसे पहले अपनी माइनस वाली वैल्यूज को सॉल्व करना है, देन प्लस वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। अब हमारे पास माइनस में एक ये वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू, ठीक है, माइनस में एक ये है और एक ये प्लस में है, बट हम लोगों ने पहले माइनस और इस वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। हम जब इन दोनों को माइनस करेंगे देन वी गेट व्हाट, 987,645,321। अब हमने अपनी प्लस वाली वैल्यू को लाना है, ठीक है ना। अब देखिए जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास माइनस का साइन इसके साथ आएगा क्योंकि इट इज द लार्जेस्ट वैल्यू। ओके, ये हमारी बड़ी है रकम इससे, ठीक है, इस वाली वैल्यू से। हेयर इफ वी सॉल्व आवर लाइक दिस वैल्यू, ओके, ये और जो ये माइनस में थी, इन दोनों को जब करेंगे आपको पता है जब एक वैल्यू प्लस में हो एक वैल्यू माइनस में हो कैलकुलेटर के बगैर भी, तो ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगी और हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 0। बट आप लोगों ने ये कैलकुलेटर यूज कर देखना है। ओके, हेयर दिस इज योर वर्कशीट एंड दिस थिंग इम्पॉर्टेंट लाइक योर नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट एंड डेट। नाउ दिस इज योर वर्कशीट। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग।